Hi guys, welcome to City Cementus. My name is Ketan. This video is based on SIBM Hyderabad. A lot of students requested me, कि sir, kindly give me a review about SIBM Hyderabad, and we really want to understand whether we should be putting in our efforts and money into it or not. So here I am with the review. Now there is not so much of information available actually, which is a little disappointing, because I would expect SIBM as a brand at least put some details, man. I mean, come on, they're like the what detail I have is 2018 and 20. So 18 का जो बैच है वो उनका प्लेसमेंट एक्चुअली 19 में चालू हो जाता है बिकॉज they start in the month of June 2018 and then sort of come in the 19 March April में वहाँ पे समर हो गया और towards the end of 19 प्लेसमेंट चालू हो जाते हैं and by March April 2020 उनका एकेडमिक ईयर भी खत्म हो जाता है प्लेसमेंट भी खत्म हो जाती है. I would love to see 1921 का रिपोर्ट जिन लोगों ने अभी तक डाला नहीं है, which is I mean I don't know, like maybe they still have their placements going on or something like that. We have no idea. Now, looking at the placement, which matters a lot to be very honest. So, looking at the placement, the first shocker for me is that the placement is not 100%. It's around about 94.74, but at the same time, it's a good thing कि यार ये college इतना transparent है that at least this college has guts to tell that भाई हमारा जो प्लेसमेंट है वो 95% है, 5% बच्चा लोग हमारा प्लेस नहीं हुआ है. अब इन लोगों ने भी इंफॉर्मेशन दी नहीं है. अब यहाँ पे कुछ कुछ बातें भी हो सकती है जो आप कर सकते हो. एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, इनका जो इंटेक है वो कुछ 130-135 के बीच में है, राइट. सो राउंड अबाउट अगर हम बात करेंगे 5% बच्चों के बारे में, राइट. सो 5% बच्चे विल बी 6 से 7 बच्चे. दे माइट हैव ऑप्टेड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और दे माइट हैव नॉट सेट फॉर द प्लेसमेंट. Again, even if you take a benefit of doubt, let's just say 6-7 बच्चों में से 2-3 बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिला होगा, 2-3 लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गए होंगे, राइट. और ये बहुत सारे कॉलेजेस में होता ही होता है. 4-5 बच्चे तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाएंगे जिनके खुद के बिजनेसेस वगैरह है, ऑल दैट स्टफ, राइट. सो it's not that bad to be very honest because these guys are pretty much open about their stats, which I really appreciate. So 95% is a good number as far as the placement is concerned. अब देखेंगे total number of companies participated 65. Number of companies added 33. इसका मतलब इसके पहले they were like at 50%, like 30 companies इनके पास थी. 65 is a pretty good number. 130-140 बच्चों के लिए 65 is a damn good number, right? और 150 भी पकड़ लोगे 2019 में इंक्रीज करा होगा तो भी यार 65 is a good number for placement. Now, if you look at the average package is 7.14 lakhs per annum. This is the median package. इनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा मेरे लिए बिकॉज 10.80 which is 11 lakhs ये जो पैकेज है मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग है. अगेन ये 2020 का डेटा है. 21 में अगर ये बढ़ के 2-3 लाख 4-5 लाख बढ़ गया होगा तो वी नेवर नो. These guys should have given the data by now, and for the fact they know that students are definitely going to hunt for the data, if they really want to buy your form. So come on guys, admissions committee, kindly do some needful, man, put some data out here. Now ये थोड़ा सा शॉकिंग है बिकॉज 10-11 लाख अगर तुम्हारा हाईएस्ट पैकेज होता है तो यार तुम्हारा 7.14 मीडियन पैकेज इज लिटिल बिट सॉर्ट ऑफ डाइजी फॉर मी बिकॉज I mean, again, I'm not saying that they are wrong. They may be correct because a lot of people might have got skewed, between a package of, let's just say, 7 से लेके 9 lakhs का package or probably 8.5 lakh का package, because of which इनका जो average package है वो ज़्यादा jump कर गया हो. But mostly ऐसा नहीं देखने को मिलता कि तुम्हारा highest 11 और तुम्हारा average 7.5 लाख हो. यहाँ पे हो भी सकता है अगर maximum placement इनकी 7 लाख के ऊपर हुई होगी तो, right? So this is what I believe. अगर हम बात करेंगे कि इनके टॉप 25% जो बच्चे हैं दे आर क्लोज टू 9.9 लाख की उनकी पैकेज है. सो डेफिनेटली बात बनती है कि एक्चुअल में ये हो भी सकता है, राइट, टॉप 25-30% बच्चों को वो पैकेज मिलना. बट व्हाट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लुकिंग एट द नंबर्स आउट हियर, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट का नंबर में अगर यहाँ पे देखूंगा इनकी फीस कुछ यार 13-14 लाख की तकरीबन होनी चाहिए मेरे ख्याल से. अगर मैं खाली ये नंबर देखता हूँ गाइस प्लेसमेंट का, आई विल ओनली एडवाइज अगर आप फ्रेशर हो तो ही इसको ज्वाइन करना, अदरवाइज ज्वाइन मत करना. अगर आपकी सीटीसी 4 लाख या 5 लाख की है तो भी ज्वाइन मत करना. अगर आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है फिर भी ये वर्थ नहीं ज्वाइन करना बिकॉज ये 2020 का डेटा के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, राइट. 2021 का इन लोगों ने डेटा अभी तक डाला नहीं है. इनकी प्लेसमेंट का थोड़ा बहुत डेटा तो आना चाहिए था मेरे ख्याल से. तो सिर्फ ये नंबर देख के मैं बात कर रहा हूँ कि यार 2-3 साल का वर्क एक्स, आई थिंक यू कैन जॉइन समथिंग बेटर. आरओआई यहाँ पे इतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा. 14 लाख का आपका प्लेसमेंट, 14 लाख का आपका फीस है, प्लस अगर आपका सैलरी 4 लाख का भी हो गया
तो मेरे ख्याल से इस लाइक राउंड अबाउट 20 lakhs वैसे देखा जाए तो। फ्रेशर्स अगर आप हो, आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप फ्रेशर हो, 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, बिंदास ज्वाइन करो। देयर इज नथिंग लाइक इट। एंड द अनदर रीजन दैट यू कैन ज्वाइन दिस फॉर इज योर ब्रांड एज एन SIBM। डेफिनेटली 4-5 साल में ये कॉलेज बूम करेगा, अब हो जाएगा डेफिनेटली। अगेन कोविड की वजह से बोल सकते हैं कि थोड़ी सी प्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती होगी, वी नेवर नो। बट अगेन फ्रेशर हो तो बिंदास ज्वाइन कर लेना, आंख बंद करके ज्वाइन कर लेना। अगर आपको रिजवी वेलिंगर बैंगलोर अगर मिल जाता है, आई थिंक वेलिंगर बैंगलोर स्टिल बेटर। अगर आपको रिजवी ठाकुर वगैरह मिल जाता है, छोटा मोटा कॉलेज अगर रीजनल मिल जाता है, उसको छोड़ के आप हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको KJ मिलता है, वेलिंगर बॉम्बे मिलता है, जिम मिलता है, टैपमी IMI वगैरह ये सब कॉलेजेस मिलते हैं, देन SIBM हैदराबाद इज नॉट वर्थ ज्वाइनिंग। अगर इनके न्यू रिपोर्ट्स आ गए, अगर इनके एडमिशंस कमेटी ने वीडियो देखा, नया रिपोर्ट अगर अपलोड करा, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अगेन, बट एज ऑफ नाउ आई विल नॉट रिकमेंड दिस। वुड लव टू सी इनका जेंडर डाइवर्सिटी या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव। ओके, ये है इनका प्लेसमेंट का थोड़ा सा रिक्रूटर का लिस्ट है इनका। रिक्रूटमेंट लिस्ट अच्छा लग रहा है। यू हैव EY कमिंग ऑन द कैंपस, यू गॉट बजाज फिंसर्व, यू गॉट एडलवाइज, विप्रो, Aurobindo is there, Deloitte is there, Big Four तो हर जगह जाते हैं, that's not a problem. Moody's is also there, ये KPMG is also there. कंपनी वाइज ये अच्छा लग रहा है। सेल्स की प्रोफाइल यहाँ पे ज्यादा होगी, आई कैन गारंटी। स्पंदन इट्स मिड कैप स्टॉक एनीवे, तो यार यहाँ पे बहुत सारी प्रोफाइल्स आपकी सेल्स की होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हैदराबाद फाइनेंस के लिए नोन है, बच्चों ने फीडबैक दिया था कि फाइनेंस के लिए अच्छा है, पढ़ाई यहाँ पे अच्छी है, फ्रैक्टल भी आता है, बट इतना तोड़फोड़ नहीं होगा, मतलब बैकएंड अगर मिल गया तो बेटर है। बैच का थोड़ा सा देख लेंगे। जेंडर डाइवर्सिटी यहाँ पे है, ये इन्होंने बराबर यहाँ पे दिया है, 2019-21 का डेटा है यार, तुम 20 का प्लेसमेंट एनीवे, 50% फीमेल 50% मेल, इट्स गुड जेंडर डाइवर्सिटी। 134 बाय द वे मैंने कहा था, 134 बच्चा लोग हैं यहाँ पे। स्ट्रीम वाइज की अगर बात करेंगे, मैक्सिमम बच्चा लोग 49 मार्केटिंग, उसके बाद फाइनेंस 23 HR एंड 22 ऑपरेशंस, तो क्लोज बाय है, मतलब दोनों में इक्वल कॉम्पिटिशन है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री अगर हम देखेंगे, बीटेक अगेन इंजीनियर्स यहाँ पे ज्यादा है। अ गुड नंबर इज गिवन बाय BBA, BCom ऑनर्स। तो मैं अगर ये तीनों को क्लब करूं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से the non-engineers will outperform. So again, it's a good college to join if you're a non-engineer and a fresher by the way. एंड अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा होगा तो मेरे ख्याल से आते हुए समय में अगर ये लोगों ने 14-15 लाख का कोई टॉप पैकेज लेके आई कंपनीज, मुझे लगता है जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत ज्यादा लगती है गाइस। आई मीन SIBM हैदराबाद भले स्ट्रगल कर रहा होगा 2020 में, बट 21 का पैकेज, हाईएस्ट पैकेज पक्का इनका 13-14 गया होगा। एंड बाय द टाइम यू गाइस आर पासिंग आउट, ये 16-17 लाख क्रॉस कर ही देगा, बिकॉज वो नॉर्मल है यार, उतना तो बनता ही है SIBM एज ए ब्रांड। अगर नहीं हुआ देन आई विल बी रियली शॉक। अगेन वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, ये देखो 76% of the bachcha, no not 76% guys, I'm sorry for that, 76 students out of that 134 are purely freshers. ये 16 जो है इनको भी तुम ऐड कर दो यहाँ पे, सो राउंड अबाउट तुम्हारे 90 आउट ऑफ 134 बच्चा लोग जो है वो यहाँ पे बने फ्रेशर्स। सो राउंड अबाउट तुम्हारा 70 से लेके 75% तक का बैच इस फ्रेशर। और मैंने पहले ही कहा था अगर आप फ्रेशर्स हो तो ही आप ज्वाइन करो, या फिर थोड़ा रुको यार, थोड़ा बेटर कॉलेज ले लो, ऐसे भी बैंगलोर वगैरह के लिए ट्राई मारो। गाइज आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू लाइक दिस रिव्यू। ये जेन्युइन रिव्यू है, ये ऑनेस्ट रिव्यू है। कुछ लोग होते हैं बड़े नेगेटिव होते हैं अपनी जिंदगी में, ये आके कमेंट करते हैं कि यार ये तो फेक रिव्यू है, या फिर ये स्पॉन्सर्ड रिव्यू है। भाई मेरे थोड़ी भगवान ने सद्बुद्धि दी होगी तुमको, तो थोड़ा कमेंट अच्छे से करना। आपके पास लैपटॉप है और उसके ऊपर बटन्स है, और आपको मम्मी पापा ने मोबाइल फोन दिया है और भगवान ने उंगलियां दी है, तो कहीं भी उंगली नहीं करते बेटा। माई रिव्यूज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज गोना बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। आई एम नॉट गोना तारीफाई एनी भी स्कूल एवर ही। जहाँ पे मुझे लगा सही चीजें हैं मैं वहाँ पे बात करूंगा, जहाँ पे मुझे लगा नहीं यार मजा नहीं आया, जैसे SIBM हैदराबाद के बारे में मैंने उनको क्रिटिसाइज करा है, उनका रिपोर्ट अपलोडेड है ही नहीं। So as simple as that. So those who trust me, those who believe me, thank you so very much for following C2C Mentors. And reviews are always going to be honest guys. जो भी मुझे पता चलता है मैं आपके लिए वो प्रेजेंट करूंगा। और जो मेरे बच्चे हैं C2C वाले, you can always discuss 1-to-1 with me as far as the colleges are concerned. हम सेशंस में भी वो बात करते हैं, मैं सेशंस में भी आपको ओपनली बोलता हूँ कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा कॉलेज नहीं लेना है। So YT फैमिली हो या C2C फैमिली हो, reviews are always going to be honest. Fine. So thank you so very much for listening to me, and I hope you like the reviews. Kindly type in the name of the colleges जिसका आपको review चाहिए. I will be more than happy to help you guys. Thank you so much guys. Thanks a lot. Bye bye.